یہ کہانی ایک ترک چھاپا مار گروہ کی ہے جو عثمانی دور میں اکنجی کے نام سے مشہور تھے۔ اکنجی دراصل عثمانیہ ریاست کی مضبوط فوج کا حصہ تھے جو سلطان کے فرمان پر خفیہ مشن سر انجام دیتے تھے۔ مووی کے آغاز میں ہمیں ایک قبیلہ دکھایا جاتا ہے جہاں کچھ لوگ حملہ کر کے اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور باقی بچ جانے والے لوگوں کو قید کر کے وہاں سے لے جا رہے ہوتے ہیں۔ انہی قیدیوں میں ایک الینا نامی لڑکی اور اس کی چھوٹی بہن بھی ہوتی ہے۔ اس لڑکی کو صلیبی فوجی قیدی پنجرے سے باہر نکال کر مار رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے کوئی مدد کو آ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ آس پاس جنگل میں بھی چھپے ہوتے ہیں جو تمام صلیبی فوجیوں کو مار کر معصوم لوگوں کو بچا لیتے ہیں۔ یہاں وہ ان معصوموں کو سلطان محمد بن جہان فاتح کا سلام دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ سلطان کے خاص چھاپا مار گروہ اکنجی سے تعلق رکھتے ہیں۔ بوگومل کے یہ مظلوم لوگ سلطان فاتح اور اس کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور مہربان سلطان کی اپنی زمینوں میں آمد کے منتظر ہوتے ہیں۔ اکنجی گروہ کا سب سے بہادر سپاہی سنگر یہاں زبردست الفاظ میں سلطان محمد فاتح کے ارادے واضح کرتے ہوئے وہاں سے اپنے ساتھیوں کو لے کر چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب سربیا میں ہمیں بازنطین کے ایک قلعے کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں شہزادی ماریا کو ایک کمانڈر اس کے باپ کے حکم پر وہاں سے کہیں بھیج دیتا ہے۔ شہزادی کو بھیجنے کے فوراً بعد ہی کمانڈر کو خبر ملتی ہے کہ ترک اکنجی گروہ نے حملہ کر کے ان کے سپاہی مار دیے اور بوگومل کے قیدیوں کو آزاد کروا دیا۔ وہ کمانڈر آگ بگولا ہو جاتا ہے اور ایک ایک ترک کا خاتمہ کرنے کی قسم کھاتا ہے۔ اگلے ہی سین میں سربیا کا حکمران کنگ لازار دکھایا جاتا ہے جس کی ملکہ اسے تنبیہ کرتی ہے کہ اگر وہ عثمانیوں کے خلاف ہار گیا تو سب ختم ہو جائے گا، جبکہ وہ سوچتا ہے کہ عثمانیوں کو مات دے کر وہ تاریخ میں سرخرو ہو جائے گا۔ یہیں اسے بھی کمانڈر آ کر اکنجی گروہ کے حملے کی خبر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ قیدی اور سونا بھی لے گئے ہیں۔ اس کے بعد کنگ لازار پوپ کے ایک آدمی کے ساتھ نظر آتا ہے اور معلوم چلتا ہے کہ بوگومل کے قیدی جنہیں ترک چھاپا مار گروہ نے بچایا انہیں پوپ کی طرف بھیجا جانا تھا۔ اب پوپ کا آدمی کہتا ہے کہ اگر تمہیں عثمانیوں کے خلاف مضبوط بننا ہے تو پوپ کے ساتھ اتحاد کی ضرورت ہے اور اس کے لیے تمہیں کیتھولک بننا پڑے گا۔ یہاں بازنطین کے کیتھولک اور آرتھوڈوکس اختلاف سامنے آتے ہیں اور ساتھ ہی کنگ لازار کی عثمانیوں سے نفرت کی وجہ بھی معلوم چلتی ہے۔ دراصل لازار کے باپ نے اپنی بیٹی یعنی لازار کی بہن امارا کی شادی عثمانی سلطان مراد سے کروا دی تھی۔ کنگ لازار کہتا ہے کہ اس کا باپ ایک بہادر آدمی نہیں تھا، اسی وجہ سے اس نے ایسا کیا۔ اکنجی گروہ کے حملے پر بات کرتے ہوئے وہ لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ کسی عثمانی جاسوس نے یہ خبر ان تک پہنچائی ہے، تبھی وہ لوگ بوگومل کے قیدیوں کو آزاد کروا کر لے گئے۔ یہاں پوپ کا آدمی اور کنگ لازار ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں کہ ان کے آدمیوں میں جاسوس ہے، جبکہ خفیہ سرنگ میں ہونے والی یہ گفتگو مسلسل کوئی سن رہا ہوتا ہے۔ یہی ہمیں معلوم چلتا ہے کہ کنگ لازار کی ماں ہی اقتدار سنبھالے ہوئے ہے اور لازار حقیقی معنوں میں بادشاہ نہیں بن سکا کیونکہ اس کا باپ اپنا تخت ملکہ کو سونپ گیا تھا اور اب پوپ چاہتا ہے کہ لازار تخت سنبھالے کیونکہ قسطنطنیہ کی فتح نے بازنطین کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہی پوپ کا آدمی بتاتا ہے کہ سلطان محمد فاتح کے قریب اس کا بھی ایک جاسوس موجود ہے جس نے اس محل میں موجود عثمانی جاسوسوں کی فہرست بھیجی ہے۔ یہ فہرست دیکھتے ہی لازار آگ بگولا ہو جاتا ہے اور اس دوران جو تمام گفتگو سن رہی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ مرحوم سلطان مراد کی بیوی امارا خاتون ہی تھی جو وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری جانب اکنجی بہادروں کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے جہاں وہ کامیاب مشن کے بعد کھانے کی دعوت میں مصروف ہوتے ہیں۔ یہاں ان کا سردار کونورالپ بتاتا ہے کہ لازار ایک پاگل بھیڑیے کی طرح ہے جسے سوچ سمجھ کر قابو کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب سربیا محل کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں بازنطین کی شہزادی اور سربیا کی ملکہ اپنے کسی بیٹے کو اپنا وارث مقرر کر کے اسے تخت دے دے گی۔ یہاں لازار اور شہزادی امارا بھی موجود ہوتے ہیں۔ لازار کی ماں آتی ہے اور اپنے دوسرے بوڑھے اور اندھے بیٹے کو جو کہ لازار کا بھائی ہے اپنا وارث مقرر کر دیتی ہے، مگر تاج پوشی سے قبل لازار یہاں ہنگامہ برپا کر دیتا ہے اور لازار کے کمانڈر ملکہ کے سپاہیوں کو مار دیتے ہیں۔ وہ شہزادی امارا کا بھیجا گیا خفیہ خط بھی پکڑ لیتا ہے کیونکہ اسے جاسوسوں کی فہرست مل چکی تھی۔ امارا خاتون کا سچ واضح ہونے کے بعد معلوم چلتا ہے کہ وہ ابھی بھی عثمانیوں کی وفادار ہے۔ وہ اس بات پر اعتراض کرتا ہے کہ ایک بوڑھے اور اندھے شخص کو تخت کیوں دیا جا رہا ہے جبکہ اس کا سامنا بہادر، مضبوط اور ذہین عثمانی سلطان سے ہونا ہے۔ یہی معلوم چلتا ہے کہ لازار نے پہلے سے ہی تمام منصوبہ ترتیب دے رکھا تھا کیونکہ ملکہ عثمانیوں سے اتحاد چاہتی ہے اور لازار پوپ سے تو وہ اتفاق نہیں کر سکتے،
लाजार पहले से ही अपनी माँ को खाने में जहर मिलाकर दे चुका होता है, इसलिए वो मर जाती है और अपने अंधे भाई को वो खुद ही मार देता है। शहजादी अमारा को कैद खाने में डाल देता है और खुद तक संभाल लेता है। दूसरी जानिब अकंजी ग्रोह के सरदार कोनुराइब को सुल्तान मोहम्मद फातेह का एक पैगाम मिलता है, जिसमें उन्होंने इस खास ग्रुप को एक नया फर्ज सौंपा है। चूँकि लाजार अब बादशाह बन चुका है तो उसने उस्मानियों से अमन मुआहदा तोड़ दिया और कभी उस्मानी सुल्तान की बीवी रहने वाली शहजादी अमारा को कैद कर रखा था। इसलिए अब वो तुर्कों के साथ जंग के लिए तैयारियां कर रहा था। जबकि एक साथी लाजार से पूछता है कि उसने अमारा को क्यों नहीं मारा, तो वो बताता है कि अगर तुर्क अमारा खातून की वजह से एक फौज उनकी तरफ भेज सकते हैं तो उसी की वजह से लाजार उस फौज को रोक भी सकता है। इसी वक्त लाजार को उस्मानी महल में मौजूद जासूस से खबर मिलती है कि अकंजी ग्रोह ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। लाजार फौरन से फौज इकट्ठी करके अकंजी ग्रोह पर हमले का मंसूबा बनाता है। दूसरी जानिब अकंजी हमलावरों का सरदार कोनूर अपने खास सिपाही सुंगुर को एक पैगाम देता है और खुद मदद के लिए किसी और जानिब चला जाता है। जबकि सुंगुर को अब अमारा खातून को कैद से बचाने के लिए महल जाना है। जब सुंगुर महल के करीब उस जगह पर पहुंचता है जहां उसके जासूस आने थे जो महल में उनका साथ देंगे, तो यहाँ उन पर हमला हो जाता है, क्योंकि लाजार को पहले से ही अकंजी ग्रोह की आमद का पता चल चुका था। यहाँ सुंगुरबे के तमाम साथी मारे जाते हैं, मगर सुंगुरबे वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। जंगल में भागते हुए वो अपना पीछा करने वाले लोगों को तो मार देता है, मगर शदीद जख्मी होने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। इसी दौरान बोकोमल की वही लड़की एलिना, जिसे सुंगुर और उसके साथियों ने बचाया था, अपनी बहन के साथ जंगल में होती है। सुंगुरबे का खास परिंदा शाहीन वहाँ मंडला रहा होता है, जिसे देखकर एलिना पहचान जाती है और उसका पीछा करते हुए सुंगुरबे तक पहुँच जाती है। एक जानिब सुंगुरबे फंस जाता है तो दूसरी जानिब उसका सरदार कोनूर और उसके तमाम बहादुर सिपाही कैद में नजर आते हैं, क्योंकि उस्मानी महल में मौजूद जासूस की वजह से उन्हें भी फंसा लिया गया था। दुश्मनों के महल में पहुंचते ही अकंजी समझ जाते हैं कि उनके साथ गद्दारी हुई थी। यहाँ लाजार का कमांडर आता है और उन्हें अपने सामने घुटने टेकने का कहता है, मगर उनके इनकार पर हाथापाई हो जाती है और अकंजी ग्रोह को ज़िंदान में डाल दिया जाता है। उधर एलिना सुंगुरबे को ले जाकर उसके जख्मों का इलाज कर रही होती है। अगली सुबह होश में आते ही सुंगुर अपने फर्ज पर जाने का कहता है, मगर एलिना उसे बताती है कि वो इस हालत में नहीं है। मजीद ये कि उसके बहुत से अकंजी साथी मारे गए और बाकी कैद में हैं। दूसरी जानिब महल में अकंजी बहादुरों पर खूब तशद्दुद किया जाता है। 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुंगुरबे की हालत कुछ हद तक बहाल हो चुकी है। यहाँ एलिना उसका काफी ख्याल रखती है। हालांकि वो एक गैर मुस्लिम लड़की है, मगर दोनों इसी दौरान काफी करीब हो जाते हैं। सुंगुरबे और एलिना मछली पकड़ने भी जाते हैं। इसी दौरान एलिना सवाल करती है कि आखिर सुंगुरबे ने अकंजी बनने का फैसला क्यों किया। यहाँ पता चलता है कि सुंगुरबे के वालिदैन को सलीबियों ने शहीद कर दिया था, जिसके बाद वो इस गिरोह में शामिल हो गया। एलिना समझती है कि वो इंतकाम के लिए इस छापामार गिरोह का हिस्सा बना, मगर सुंगुरबे के ख्यालात उसे हैरान कर देते हैं। वो बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए अकंजी ग्रोह का हिस्सा बना था कि उसकी तरह दोबारा किसी बच्चे के माँ बाप को उसकी आंखों के सामने शहीद ना किया जाए और ना ही वो उनसे जुदा हो, और ये कि वो अल्लाह की रजा के लिए इंसाफ का निजाम कायम करना चाहते हैं। दूसरी जानिब लाजार शहजादी अमारा को बुलाता है और उसे पेशकश करता है कि उसे आजाद कर दिया जाएगा। इसके बदले उसे सुल्तान मोहम्मद फातेह का जासूस बने रहने का ढोंग करना होगा और ये यकीन दिलाना होगा कि लाजार उस्मानियों का वफादार है, ताकि सुल्तान कोई पेशकदमी ना करे और इस दौरान लाजार तैयारी करके हमला कर दे। मगर अमारा खातून इनकार कर देती है, जिसके बाद उसके सामने उसके वफादार नौकर को मारकर दोबारा से उसे जिंदान में फेंक दिया जाता है। अगले सीन में ही दिखाया जाता है कि सुंगुरबे और एलिना कुछ सांपों का जहर निकाल रहे हैं, जबकि अकंजी साथी जिंदान में खुदा की मदद के मुंतजिर होते हैं। उधर बोगोमल के लोग उस इलाके को भी छोड़ने की तैयारियां करते हैं, क्योंकि अब तो अकंजी भी पकड़े गए थे। मगर इस दौरान एलिना और सुंगुरबे उनके जोश को खूब बढ़ाते हैं और उनके साथ मिलकर लाजार के खिलाफ लड़ने का कहते हैं। सुंगुरबे यहाँ उन्हें बताता है कि अब नहीं तो कभी भी नहीं, फौज महज ताकत से नहीं जीत सकती, कम तादाद होने से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ सुंगुर बहुत से बहादुरों की लड़ाई और जीत की दास्तानें सुनाता है, जिसके बाद सबसे पहले एलिना उसका साथ देने का ऐलान करती है और फिर बाकी लोग उसके साथी बन जाते हैं। यहाँ वो मंसूबा बनाते हैं कि लाजार की बेटी जो 2 दिन बाद सिर्बिया आएगी वो लाजार की कमजोरी है और उसके जरिए ही वो लाजार को शिकस्त देंगे, जिसके बाद वो खुद ही डाकुओं के जरिए शहजादी मारिया पर हमला करवाते हैं और आखिर में सुंगुरबे पॉप का आदमी बनकर शहजादी को बचा लेता है और एलिना को अपनी बहन के तौर पर मुतारिफ करवाता है। यहाँ वो शहजादी के जरिए लाजार के गले तक पहुँच जाते हैं
उधर लाजार अकंजी ग्रोह के सरदार कोनूर को बुलाकर कहता है कि आखिर सुल्तान ने इतनी खामोशी क्यों इख्तियार कर रखी है, जबकि हमारा खातून कैद में है और एक नया बादशाह आ चुका है। सरदार कोनूर यहाँ साबित कदम रहता है और माजी में कुस्तुनतुनिया की फतह का हवाला देता है। इसी दौरान लाजार की बेटी और सुंगुरबे, जो कि पोप के आदमी का बेस बदले होता है, अंदर आते हैं और शहजादी बताती है कि इस बहादुर ने उसकी जान बचाई। लाजार को पहले सुंगुरबे पर शक होता है, मगर फिर सुंगुरबे उसे बताता है कि वो तुर्कों को ज्यादा बेहतर जानता है, क्योंकि वो अपनी बहन को उनकी कैद से छुड़वा कर लाया है। जिसके बाद सुंगुरबे, जो कि अब पोप के कमांडर का बेस बदले हुए है, उन्हें उस्मानी सुल्तान की हिकमत अमली के बारे बताता है कि वो इस तरफ नहीं आ रहे बल्कि वो किसी और मुहिम पर तवज्जो दे रहे हैं, इसलिए लाजार पुरसुकून रहे। जिसके बाद लाजार कहता है कि फिर तुम इसी अकंजी सरदार को मार दो, क्योंकि अब उसे सुल्तान के गजब का डर नहीं है। यहाँ अकंजी सरदार बातों ही बातों में सुंगुरबे को इशारा देता है कि वो उसे मार दे, और जब सुंगुरबे अपने ही हाथों से अपने सरदार को मार देता है तो लाजार बहुत खुश होता है और उसके आजाज में एक दावत का एहतमाम करता है। एक जानिब सुंगुरबे का दिल दुख से चूर हो चुका है और दूसरी जानिब शहजादी सुंगुरबे से मुतासिर हो जाती है। लाजार का कमांडर अपने खास आदमी को इस कमांडर पर नजर रखने का कहता है जिसने शहजादी की जान बचाई थी। उधर सुंगुरबे अपने सरदार को कुर्बान कर देने के बाद गम से टूट चुका होता है और एलिना उसे दिलासा देती है, मगर सुंगुरबे खुद को ये कहकर संभाल लेता है कि शहीद तो जिंदा होते हैं। यहाँ एलिना कोनूराल्ब की बेखौफ शहादत से मुतासिर होकर मुसलमान हो जाती है। अब वो सुंगुरबे के साथ जहाद का हिस्सा बन जाती है और दोनों दावत के दौरान सिपाहियों को जहर देने का मंसूबा बनाते हैं, मगर लाजार का कमांडर और उसका आदमी मुसलसल सुंगुरबे और एलिना का पीछा कर रहे होते हैं। ऐसे में जब वो पकड़े जाने वाले होते हैं तो सुंगुरबे कमांडर और उसके आदमियों को भी मार देता है। यहाँ बोगमल के कुछ लोग किले में जासूस के तौर पर नजर आते हैं और वो बताते हैं कि बाकी अकंजी और बोगमल हमले के लिए तैयार हैं। दावत का आगाज होता है और वहाँ सुंगुरबे शहजादी के साथ रक्स करता है। इस दौरान लाजार अपने कमांडर के बारे पूछता है जो गायब होता है, क्योंकि सुंगुरबे उसे मार चुका है। रक्स के खत्म होते ही लाजार कैदी अकंजी बहादुरों को लाता है और ऐलान करता है कि बहादुर सुरमा इन तमाम अकंजी लोगों को मारेगा, और यहाँ वो सुंगुरबे की तरफ इशारा करता है। दूसरी जानिब एलिना अमारा खतून को बचाने जाती है, मगर जब वो फरार होने ही वाले होते हैं तो लाजार का एक कमांडर उन्हें पकड़ लेता है। उधर लाजार भी सुंगुरबे का मंसूबा फाश कर देता है, क्योंकि उन्हें खाने में मौजूद जहर की वजह से सुंगुरबे की सच्चाई पता चल गई थी। अब खुल्लम खुला लाजार के सिपाही और सुंगुरबे सामने आ जाते हैं। इतने में गले में छुपे तमाम जासूस आकंशी और बाजंतीनियों के बेस में बोगमल के लोग सामने आते हैं। कुछ लोग बारूद के कमरे में आग का तीर मारकर धमाका कर देते हैं। सुंगुरबे इस भगदड़ के दौरान अमारा खातून एलिना और अपने साथियों के साथ भाग रहा होता है और अमारा खातून बताती है कि तख्त वाले कमरे में एक खुफिया रास्ता है, वो उसके जरिए निकल सकते हैं। तख्त को हटाने पर उस खुफिया सुरंग के जरिए सुंगुरबे अमारा खातून और उसके तमाम अकंजी साथियों को जाने का कहता है, क्योंकि अमारा खातून को बचाने का उसका फर्ज पूरा हो गया। मगर खुद वो यहाँ रुकता है क्योंकि उसके सरदार का बदला बाकी है। एलिना भी यहीं सुंगुरबे के साथ रुक जाती है। दूसरी जानिब सिपाही वो खिलाए हुए किंग लाजार के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि तुर्क आ रहे हैं, जबकि वो सब तो बोगमल के लोग होते हैं जो कले की तरफ पेशकदमी करते हैं। इसी भगदड़ में लाजार तमाम सिपाहियों को दीवारों की तरफ भेज देता है और खुद तख्त वाले कमरे की तरफ दौड़ता है। उधर सुंगुरबे सबको भेज देता है और अमारा खातून से कहता है कि वो सुल्तान को सलाम दे और गद्दार का नाम जरूर बताए। अब सुंगुरबे का एक साथी एलिना और खुद सुंगुरबे लाजार और उसके आदमियों का सामना करते हैं। जब वो लोग सब सिपाहियों को मार देते हैं तो लाजार कहता है कि वो उसे छोड़ दे और उसके तख्त समेत सब ले ले, मगर सुंगुरबे उसे भी मार देता है और फिर उसकी बीवी को मलिका बना देता है, जो कि उस्मानियों से वफादारी का ऐलान करती है। आखिर में 3 माह बाद का सीन दिखाया जाता है। तमाम अकंजी और तुर्क खुशी से नाच रहे होते हैं। दरअसल ये सुंगुरबे और एलिना की शादी का दिन होता है। एलिना भी अब अकंजी ग्रोह के साथ मिल जाती है और अब वो मिलकर अपने मकसद के लिए आगे बढ़ते हैं। यही मूवी का इख्तिताम हो जाता है।